Hello students. In previous video we have discussed about comparison of physisorption and chemisorption. Today we will discuss some more important topics. So let's start this video. And today we will discuss about adsorption isotherm. It is very important topic, and this adsorption isotherm actually explains about the amount of gas adsorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature. So temperature is kept constant, and a relation of the adsorbate, that is the gas adsorbed by the adsorbent. तो प्रेशर के साथ, एज यू नो वेरी वेल दैट एज द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑल्सो इंक्रीज. तो टेम्परेचर के साथ उसका क्या रिलेशन है? टेम्परेचर के साथ उसका रिलेशन ये है कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, एड्जॉर्प्शन कम होगा. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन कम होगा. यहाँ पर आप एक वीडियो देख सकते हैं, डिफरेंट यहाँ पर एक पिक है, इसमें डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं और जो हमने एक्स एंड वाई एक्सिस लिए हुए हैं, एक्स बाय एम वर्सेस प्रेशर. तो एक्स is actually the amount of gas adsorbed and m is the surface or the substance on which gas is adsorbed. तो x adsorbate है, गैस है, एंड m इज adsorbent है जिस पर गैस एड्जॉर्ब हुई है, प्रेशर. और जो तीन डिफरेंट कर्व देख रहे हैं ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हैं. और ये जो टेम्परेचर यदि आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ कम टेम्परेचर है और नीचे की तरफ ज़्यादा टेम्परेचर है. तो ज़्यादा हायर टेम्परेचर पर गैस का एड्जॉर्प्शन कम होगा. तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को हम इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. Freundlich isotherm. In the intermediate range of pressure, x upon m will depend upon p raised to the powers between unity and 0. This can be expressed as x upon m is directly proportional to p raised to the power 1 to 0, or x upon m is directly proportional to p raised to the power 1 upon n, where value of n is greater than 1, or it can be written as x upon m is equal to k multiplied by p raised to the power 1 upon n. K and n are constant, whose value depends upon the nature of gas and the adsorbent solid at a particular temperature. Taking logarithm on both sides, we get log x upon m is equal to log k plus 1 upon n log p. The graph between log x upon m and log p is a straight line. The slope of the line is equal to 1 upon n, and the intercept on log x upon m axis will correspond to log k. Next video is about application of adsorption. So dear student, it is very important you go through this video and watch it. Now next topic, it is about catalyst. As you know very well that substance that change the rate or which increase the rate of reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as catalyst. तो कैटालिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, लेकिन उनके अपने केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है, क्वांटिटी में भी कोई चेंज नहीं आता. देन दे रिमेन अनचेंज आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. दे आर नोन एज कैटालिस्ट. कैटालिस्ट के बाद हम डिस्कस करते हैं प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स. तो प्रमोटर्स आर दो सब्सटेंस विच इन्हेंस और विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट. जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे उसको हम प्रमोटर्स कहेंगे, और जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे, कम कर दे, उसको हम पॉइजन्स कहेंगे.
तो ये दो कैटेगरी भी आ जाती हैं, प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, दैट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। In Haber's process for manufacture of ammonia, you know this reaction, nitrogen and hydrogen gases combine to give ammonia. तो यहाँ पर कैटलिस्ट का काम आयरन करता है और मोलिब्डेनम इट एक्ट एज प्रमोटर। ये आयरन जो कि एक कैटलिस्ट है, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यूटिलाइज होता है। कैटलिस्ट को हम उसकी फिजिकल स्टेट के हिसाब से भी कैटेगराइज करते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस व्हेन रिएक्टेंट्स and catalyst are in the same phase, then it is known as homogeneous catalysis. You can see here an example. When gas reactants and catalysts both are in same phase, then it is known as homogeneous catalysis. And when reactants and catalysts are in different phase, then it is known as heterogeneous catalysis. तो हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को। Now next topic is adsorption theory of heterogeneous catalysis। यानी कि जब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है तो वहाँ पर कैटालिस्ट का क्या काम है, किस तरह से वो केमिकल रिएक्शन को एक्सिलरेट करता है, इसके लिए एड्सॉर्प्शन थ्योरी है। सो द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, फॉर एग्जांपल गैसेस रिएक्शन ऑन अ सॉलिड सरफेस। यहाँ पर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कैटालिस्ट सॉलिड है और रिएक्टेंट्स गैसेस हैं। तो उस कंडीशन में एड्सॉर्प्शन थ्योरी कैसे काम करती है? यू कैन सी हियर reactants are A and B which are in gaseous state and they are giving product C and D। तो जो reactants A and B है वो gaseous state में है, catalyst solid है। किस तरीके से ये adsorption theory के according reaction होगी, क्या mechanism होगी? तो इसमें जो steps involve होते हैं, सबसे पहला है diffusion of reactants at the surface of the catalyst। जो reactants हैं वो catalyst की surface पर आकर diffuse होता है। सेकेंड स्टेप में एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स एट द सरफेस। रिएक्टेंट्स जो है गैसेस रिएक्टेंट्स वो केवल एड्सॉर्ब होंगे एट द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, अपने आप को वहाँ पर अटैच करते हैं। थर्ड स्टेप होगा रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स एट द सरफेस। जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में रिएक्शन होगा कैटालिस्ट की सरफेस पर। और लास्ट स्टेप होगा, क्योंकि जब रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट बनने के बाद कैटालिस्ट की सरफेस से डिसऑर्प्शन हो जाता है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो अपने आप को डिटैच कर लेते हैं कैटालिस्ट की सरफेस से। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स Now you can see this figure। इस फिगर में आप देखें कि SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में आप देख रहे हैं एक सल्फर का येलो एटम है और दो ऑक्सीजन के रेड एटम्स दिखाई दे रहे हैं, एंड ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। तो दो मॉलिक्यूल हैं SO2 एंड ऑक्सीजन। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन होना है। अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल है ये अपने आप को डिफ्यूज़ करते हैं एट द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट, ये ब्राउन कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, कैटालिस्ट की सरफेस है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स अपने आप को एड्सॉर्ब करते हैं, कहाँ पर? एट द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। यहाँ पर आप देखिए
ये SO2 ने अपने आप को एड्जॉर्ब किया और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड भी ब्रेक हुआ है। उसके बाद SO2 और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ बॉन्डिंग हुई है। तो SO2 और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होने के बाद आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो बनता है SO3 बनता है। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आप देखो SO3 बना है, एक S और 3 ऑक्सीजन के एटम्स है और इन SO3 ने अपने आप को यहाँ से डिटैच कर लिया है, जिसको हम डिसॉर्प्शन बोलते हैं। तो 4 जो स्टेप्स आते हैं, पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है एड्जॉर्प्शन, तीसरा है रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स एट द सरफेस और चौथा है डिसॉर्प्शन। तो ये 4 स्टेप्स में जाकर पूरी प्रोसेस होगी एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में। नेक्स्ट हम देखें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। सॉलिड कैटालिस्ट के क्या फीचर्स होने चाहिए? तो सबसे पहले आप देखें एक्टिविटी। द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, कितना एक्टिव है कैटालिस्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो कितना केमिजॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट में किस तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। द एड्जॉर्प्शन शुड बी रीजनेबली स्ट्रॉन्ग बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग दैट दे बिकम इमोबाइल। देखिए एड्जॉर्बेट यानी कि जो एड्जॉर्ब होने वाला मटेरियल है और जिस पर एड्जॉर्ब हो रहा है, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होगा तो डिसॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो ये एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट है, कितना एक्टिव कैटालिस्ट को होना है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड नहीं बनाना है एड्जॉर्बेट के साथ कि जो प्रोडक्ट है वो अपने आप को डिसॉर्ब ना कर पाए। Next feature of solid catalyst is selectivity. The selectivity of catalyst is its ability to direct a reaction to give a particular product. तो कोई पर्टिकुलर कैटालिस्ट ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे सकता है। यहाँ पर हम 2 रिएक्शन देखते हैं इसके लिए। पहला रिएक्शन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के बीच में है, कैटालिस्ट निकल है, प्रोडक्ट हमको मिलता है मीथेन। तो यहाँ पर हमको जो प्रोडक्ट मिला मीथेन मिला जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन हुई। दूसरा रिएक्शन देखिए, रिएक्टेंट्स वही सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है, दैट इज़ मिथेनॉल। अब मिथेनॉल क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर हमने जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट आप देखिए ये हमने अलग ले लिए हैं, तो कैटालिस्ट अलग लेने पर प्रोडक्ट अलग हो जाता है। तो सिलेक्टिविटी का मतलब ये है कि आप कौन सा प्रोडक्ट चाहते हैं, उसके हिसाब से कैटालिस्ट सेलेक्ट किया जाएगा। कैटालिस्ट की एक और कैटेगरी है, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ कॉल्ड एज शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। तो शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि ये शेप पर डिपेंड करता है। द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द pore structure, it should be actually pore structure of the catalyst and size of the reactants and product molecule is called shape selective catalysis. तो जो डिपेंड करता है पोर स्ट्रक्चर, कैटालिस्ट के पोर स्ट्रक्चर पर, वहाँ पर जाकर एक्चुअली रिएक्टेंट अटैच होता है और इसलिए इसको शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बोलते हैं। जियोलाइट्स आर गुड शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट की, जिसको हम जियोलाइट्स बोलते हैं, इसके अपने हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की वजह से। एंड दीज जियोलाइट्स आर एक्चुअली एल्यूमिनोसिलिकेट। सो लेट्स सी द फिगर ऑफ दिस जियोलाइट। जियोलाइट में आप बीच बीच में ये पोर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये है एक्चुअली इसका हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है और यहीं पर जाकर ये एक्चुअली एक कैटालिस्ट है और इस कैटालिस्ट के जो पोर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर जाकर जो रिएक्टेंट्स है वो अटैच होते हैं, फिर उनके बीच में रिएक्शन होगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर डिसॉर्प्शन होगा। तो जो रिएक्टेंट्स इन पोर्स में जाकर एक्चुअली फिट होते हैं, वह उन्हीं का रिएक्शन यहाँ पर होगा। Now you know very well about enzymes,
enzymes is another category of catalyst. So enzymes are actually the complex nitrogenous organic compound. ये क्या है? ये नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि इनमें नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन भी है. सो दे आर एक्चुअली प्रोटीन्स. जो एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीन्स विथ हाई मॉलिक्यूलर मास. Many reactions which occur in bodies of plants and animals are catalyzed by enzymes. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर कैटालिस्ट का काम ये एंजाइम्स करते हैं, एंड देयरफॉर एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकेमिकल कैटालिस्ट. कुछ एग्जांपल्स हैं इन बायोकेमिकल कैटालिस्ट यानी कि एंजाइम्स के. फर्स्ट वन इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में आप देखिए ये केन शुगर है C12H22O11, और ये एंजाइम की प्रेजेंस में दो कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. अब यहाँ पर जो एंजाइम यूटिलाइज हो रहा है उसका नाम दिया है इन्वर्टेज. तो इन्वर्टेज की प्रेजेंस में केन शुगर ग्लूकोज एंड ईस्ट में कन्वर्ट होगा. दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, conversion of glucose into ethyl alcohol and carbon dioxide. तो जो ग्लूकोज है वो इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर जो एंजाइम यूटिलाइज हो रहा है दिस इज जाइमेज. तो जाइमेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये कुछ बायो केमिकल एंजाइम्स हैं, कैटालिस्ट है जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं. अब इन एंजाइम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? जनरली जो नॉर्मल कैटालिस्ट होते हैं नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से उनसे हट के इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पहला तो सेम ही है कि ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं. दूसरा, एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट, बहुत थोड़े से अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है. ये सभी कैटालिस्ट के लिए सही है कि कैटालिस्ट की बहुत थोड़ी सी अमाउंट की ज़रूरत होती है. दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. ऑल कैटालिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक. एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में पर्टिकुलर कैटालिस्ट ही काम करता है. दे आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, आर अफेक्टेड बाय pH. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एंजाइम्स. बाकी कैटालिस्ट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं देयरफॉर एंजाइम्स आर अफेक्टेड बाय pH. सम कैटालिटिक रिएक्शंस आर रिवर्सिबल. कुछ कैटालिटिक रिएक्शंस रिवर्सिबल भी होती हैं. सम रिक्वायर कोएंजाइम. कुछ एंजाइम्स को काम करने के लिए कोएंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है, यानी कि उनको अपने साथ कुछ और एंजाइम चाहिए जिनको हम कोएंजाइम कहते हैं. एंड if a chemical reaction is catalyzed by enzymes, they can also inhibited by inhibitors. Inhibitors की जिनको हम inhibitors कहते हैं उनकी प्रेजेंस में जो एंजाइम एक्टिविटी है वो कम हो जाती है. So these are some characteristics of enzyme catalysis. अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं mechanism of enzyme, कि आखिर जो एंजाइम कैटालिसिस है ये होता कैसे है, किस तरह से काम करता है. सो लेट्स गो थ्रू दिस वीडियो. Mechanism of enzyme catalysis. The enzymes are highly specific in their action. The specificity of an enzyme is due to presence of some specific sites called active sites. These active sites are associated with the presence of some functional groups which undergo some weak interactions with the substrate molecule. The shape of active site on a given enzyme is such that only a specific substrate can bind with it. This specific binding of the active site with the substrate results in the formation of enzyme-substrate complex. In this complex, the substrate molecules are held in appropriate steric orientation to facilitate the reaction. After achieving proper orientation, substrate molecules react to form the products. As product molecules do not have affinity for the enzyme surface, they immediately leave the surface so that fresh substrate molecules bind with the active site.
So, in mechanism of enzyme catalysis, actually their substrate and reactant इनके बीच में की एंड लॉक के तरह का रिएक्शन होता है, प्रॉपर साइट होती है, वहीं पर जाकर जो रिएक्टेंट है वो एंजाइम से अटैच होता है। यदि वो प्रॉपर साइट उसको नहीं मिलती है तो वो उसके साथ ना अटैच होगा ना प्रोडक्ट बनाएगा।